27 मार्च 2019 सुबह 10:53 पर जब आप अपने दफ्तर में बैठ के चाय की चुस्कियों के मजे ले रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आता है। और वो ट्वीट क्या कहता है? मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊंगा। और इसी के साथ पूरा देश हिल जाता है। कोई एटीएम की ओर भागता है तो कोई अपने घर में जाके छुप जाता है। पर मोदी जी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उनके नए पिटारे में से निकल कर क्या आता है? मिशन शक्ति। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है मिशन शक्ति और क्यों और कैसे ये भारत को एक सुपर पावर बनाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बात बताते हैं कि 11-12 बजे का टाइम देने के बाद जब 12:30 बजे मोदी जी टीवी पे आए तो उन्होंने क्या कहा? प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें। यही हमारा लक्ष्य है। मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एड्रेस के बाद हमें मालूम चलता है कि पिछले 6 महीने से 300 वैज्ञानिक एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो महज 3 मिनट में भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता था। और हम 3 मिनट में एक स्पेस सुपर पावर बन भी गए। It's a great accomplishment for the country. Thanks to the government which supported the whole event as well as whole mission Shakti. And also congratulate DRDO, all the scientists, the scientific advisor, and also the Secretary Department of Defense Research and Development. Everyone, all the scientists and staff of DRDO, I should congratulate because I have been part of DRDO for 40 years. So it's a great moment of joy and satisfaction for me as a scientist of DRDO and as a citizen of India that today we made a remarkable achievement, demonstrated the capability of an anti-satellite missile developed by DRDO, and today it was launched very successfully. All the mission parameters went accurately and the mission was perfect. So this it's a great moment of joy for all the scientists and people of India. It's a great day today, and I am thrilled and proud of the achievement which has been made today by our scientists and the commitment that has been shown by our political leadership in making it happen. We have developed many technologies towards the
ASAT, and today we have launched a missile against a satellite in the lower Earth orbit, and we have hit the target by kinetic kill. That means by directly going and hitting the satellite. This calls for many technologies which we have developed completely indigenously within the country, and we have achieved this within a few centimeters of accuracy, which is a very high level of accuracy. The scientists in the country have dedicatedly worked for this and achieved this. This is a very significant milestone in the country's technological development era. It is very important because today India has demonstrated its technological capability that we can engage in low Earth orbit and orbiting satellite at any point in time with very high precision. We have the rocketry capability, we have the kill vehicle capability, we have the acquisition capability, we had the network of radars and systems which are able to track satellites which are orbiting in the various orbits, what they are doing, what are their speeds, in which direction they are going. All this information we have. Technologically, we have demonstrated that this entire process of engaging a satellite is completely automated with the help of ground-based radars, mission control centers, launch control centers, all in a very unified manner. They can acquire the orbiting satellite and send our own interceptor with a precision of better than 1 millisecond, so that it can directly hit a satellite. That is what has been achieved. Well, it is another further in the cap of Indian space program and also the missile program of the country. This I certainly first congratulate the Prime Minister for having a political will to take such a decision and implement it within a short time. In fact, there are only few countries which have got this technology, that is US, Russia, China. And when Chinese did this kind of experiment, there was a lot of uproar from the international community. Of course, they shot down one of their dead satellites only, but it was in a critical altitude of around 600 kilometers, and they created more than 10,000 pieces out of this blast. So that was polluting the entire space. But here we have taken a very wise decision to have a satellite made by ISRO launched into a lower Earth orbit and demonstrate that we can kill a live satellite using our own anti-satellite system. अब ये मिशन कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही लोगों को ये बात मालूम थी कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है, और ये इतना सीक्रेटिव मिशन था कि हमें तो प्रधानमंत्री की ट्वीट से पहले पता ही नहीं था कि बात क्या होने वाली है। भाई सरल भाषा में बात करें तो भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू एक लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ती हुई सैटेलाइट को मार गिराया। तो क्या होता है लो अर्थ ऑर्बिट? लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है। ये सैटेलाइट्स धरती से कुछ 650 से 1600 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ऐसी एक सैटेलाइट को मिशन शक्ति के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया, और ये सैटेलाइट इस्तेमाल होती है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, यानी डेटा ऑपरेशंस के लिए, ईमेल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और आपके यूट्यूब और फेसबुक देखने के लिए। तो ऐसी एक सैटेलाइट को, जो भारत की अपनी सैटेलाइट थी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। पर घबराइए मत, ये वीडियो आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो एक रिडंडेंट सैटेलाइट थी। अब आप ये पूछेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्यों इस्तेमाल करती हैं एक लो अर्थ ऑर्बिट का? वेल, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को पहुंचाने में कम एनर्जी लगती है। तो ऐसी एक रिडंडेंट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को गिराने से भारत ने क्या साबित किया? वेल, भारत पहुंचा सुपर 4 में, और सुपर 4 में कौन कौन आते हैं? अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत। अब 27 मार्च 2019 से पहले सिर्फ 3 देशों के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो एक लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ती हुई सैटेलाइट को मार गिरा सके, और उस दिन के बाद अब भारत के पास भी ये क्षमता आ चुकी है। 1959 में अमेरिका ने किया था पहला परीक्षण, और एक सैटेलाइट को, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ रही थी, उसको उन्होंने मार गिराया था। स्पेस रेस का जमाना था, इसलिए 1963 में रूस ने भी किया एक टेस्ट, और वो सफल रहे।
40 साल के बाद 2005 और 2006 में फेल होने के बाद 2007 में चाइना के पास भी ये कैपेबिलिटी आ गई और अब 12 साल बाद भारत भी इस एलीट क्लब में आ गया है और सुपर 3 का क्लब अब हो चुका है सुपर 4। तो चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई कि अब हमने लॉन्च भी कर दिया, 3 मिनट में सैटेलाइट भी गिरा दी और अब हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब में भी एंटर कर चुके हैं। बट इस मिशन शक्ति से आखिर होगा क्या? मिशन शक्ति का सबसे बड़ा असर तो यही है कि अंतरिक्ष में मिसाइल दागने की दिशा में अब बढ़ चुका है भारत। दुश्मन देश की किसी भी संचार व सैन्य उपग्रहण को नष्ट करने की कैपेबिलिटी भी अब भारत के पास आ चुकी है। और सोचिए कि अगर कल को शत्रु की संचार व्यवस्था ठप हो जाए तो उनकी सैन्य संचार प्रणाली भी एक तरीके से ठप हो जाएगी। और फाइनली देश की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को भी मजबूत कर सकेगा मिशन शक्ति। अब इलेक्शन का टाइम है और इसके बीच में मोदी जी ने आके एक घोषणा कर दी कि अब भारत एक एक्सक्लूसिव सुपर 4 क्लब में आ चुका है और बाकी सारे नेता भी इसमें कूद गए। अब नेताओं का क्या है, उनका काम है कहना, कुछ ना कुछ तो वो कहते ही रहेंगे। बट इस पूरे मिशन शक्ति से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हमें अपने देश के साइंटिस्ट पे गर्व होना चाहिए और इसके लिए DRDO और हमारे सारे साइंटिस्ट, वो 300 के 300 साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया को ये कैपेबिलिटी दी, उनको हमें हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहिए। बट हमें इन सब नेताओं की नहीं सुननी चाहिए और अगर आप चाहें तो आप मोदी जी की भी ना सुने, क्योंकि मिशन शक्ति से एक बात साफ जाहिर होती है कि देश के असली सुपर हीरो जो हैं वो हैं देश के साइंटिस्ट और DRDO।